He called me and he's like, bro, we want you in the lineup tomorrow. Vinny Vici, you are closing it. Wow. I was like, wow. All right, I am double happy. Thank you so much. दिलजीत पाजी के साथ when I opened him, मैंने ना आज तक इतनी फैन फॉलोइंग किसी इंडियन आर्टिस्ट के लिए नहीं देखी है। हबीबी कम टू दुबई। कि जो असली आशिकी होती है ना, वो शादी के बाद ही शुरू होनी चाहिए। वाओ। उससे पहले सारे दिल दिल ही घूमते रहते। What do you think? इंडिया में पार्टी सीन बेस्ट किधर है? दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, कोलकाता। स्मॉल एग्जाम्पल रिलेटेड टू नाइट लाइफ। राइट। पुणे में एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर 2 people died and the entire night life had to suffer and is suffering. So many people unemployed. What do you think are some compromises that you might have to make as a DJ? कभी कभी रात के 3 बजे कॉल आता है कि चलो 1 घंटे में रेडी हो जाओ, 4 बजे आपका सेट है। मेरे पेन ड्राइव में 12,000 गाने हो गए, है ना। तो मैंने 12,000 गाने पता नहीं कितनी बार सुने हैं। तो पीछे से CO2 गन ली और ऐसे घुमाया और एक करक करके आवाज़ आई। नहीं लग गया। अब मेरे पास 2 गाने हैं। When I got down, उसके 20 मिनट बाद लिटरली मेरी बॉडी 6:10 में थी। कहीं ना कहीं यार मैं भी वही लौंडा हूँ जिसको स्कूल की सबसे प्यारी लड़की पर क्रश था, लेकिन वो मुझे भी नहीं मिली। Sometimes for a good life, all you need is some good vibes. But ये good vibes है क्या? Good vibes is all about finding the right place, the right people, the right mood, and the right things to do. And today, to share and spread those good vibes with us, we have a very special guest. ये वो है जो हर बलिए को नचा दे और अपने अलग अलग टैलेंट से हर स्टेज पे मचा दे। ये वो डीजे वाले बाबू हैं जिनके सिर्फ मैशअप्स नहीं बल्कि लॉकअप भी हिट है। Please welcome Ali Merchant. Thank you everybody. Hi Ali, what's up? I'm good. How are you? Thank you so much. How's life? क्या चल रहा है आजकल? यार बहुत कुछ चल रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है एंड आई थिंक मैं अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट जोन पर। Wow, that's so good to know. Thank so you. good to hear. Can you tell us some of those good things जो लाइफ में चल रही है? Well, I just got married. Lovely. Congratulations. Thank you on that. so much. So obviously life एकदम बदल जाती है उसके बाद और बदलनी भी चाहिए, है ना। So priorities change, things change, responsibilities come in. Perception changes. You understand, जैसे आपने कहा good vibes. Actually good vibes होता क्या है? Right. Obviously we need to find time for it. Right. And then you reach कि हाँ ये होता है good vibes. And then spending time with मेरे इतने सारे बच्चे हैं, pets हैं, कुछ 13 बिल्लियाँ हैं, 2 कुत्ते हैं. So plus there is a lot happening in music, film आ रही है, so a lot of things. Wow, that's so lovely to hear. Because this show is about good vibes. Right. We wanna start with what is good vibes for you. मेरे लिए good vibes is being in peace, having a lot of information, knowledge, learning things, spending time with my family, Exactly. spending time with my pets, being in a beautiful location which has lots of greenery, lots of nature, lots of beautiful fresh oxygen, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें हैं good vibes. And what do you think कि ये misconceptions क्या हैं लोगों को good vibes से related? होता है ना कि गुड वाइब्स का लोगों ने ना बहुत ही गलत मतलब और गलत तरीके से उसे यूज Right. करते हैं ना। एंड व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू से इज व्हाट यू एंड अप बिकमिंग, Exactly. है ना। जैसे अभी हाल ही में आई जस्ट गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल रिलेटेड टू नाइट लाइफ। Right. पुणे में एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर 2 people died and the entire night life had to suffer and is suffering. So many people unemployed. क्यों? क्योंकि वो बच्चे या वो लोग या जो भी जिनकी वजह से जो भी हुआ है ना, उसे लगा कि यार ये गुड वाइब्स है ब्रो, हैविंग अ सुपर कूल कार, ड्राइविंग अराउंड, people looking at us, listening to loud music, having a car which you can just open off. This is what good vibes is. No. You've destroyed, that is toxic vibes. Because of you so many people are suffering. तो do you think पुणे में अभी थोड़ा पार्टी सीन भी कम हो गया है, I बंद think है पूरे क्या scene? महाराष्ट्र में ही उसे अफेक्ट किया गया है। Right. बहुत सारे आर्टिस्टों को शोज नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइमिंग। इफ यू डोंट हैव द टाइमिंग, हाउ विल दे अफोर्ड पेइंग द आर्टिस्ट, हाउ विल द वेन्यूज रन। एक क्लब में अप्रोक्सीमेटली 100 लोग काम करते हैं। इट्स लाइक अ सेट पे भी 100 लोग काम करते हैं। Exactly. तो इमेजिन करो रातों रात उनकी नौकरी चलेगी, और ऐसे 1000 वेन्यूज हैं। So there is a lot of economy hit. Why? For some stupid pleasure. What is that really pleasure? Come on, this is not right, correct? So because of you, अगर आप बहुत किसी और को सफ़र करना पड़ रहा है ना,
that is not good vibes, that is loose character vibes. You know, so I feel कि you need to really question every time जब भी आप किसी के साथ वक्त बिताते हो कि क्या ये सच में वो वाइब है जिसमें आपको रहना है, या आप सिर्फ you're being flown away, आपको समझ नहीं आ रहा है और आप सिर्फ बह रहे हो, है ना, तो आपको रुक जाना चाहिए कि नहीं, you know bro, I'll see you next time and just walk out, you know, because that will help you understand the difference between right and wrong. Right, and that is a fine line that you cannot cross. Correct, exactly. You need to have your boundaries set. Good vibes के नाम पे आप you cannot just do anything wrong. Exactly. When we're talking about social media, one place that we got a lot of good vibes from was your social media. And we feel that, you know, you're a big animal lover. There's a lot of pictures with you and your pets, as you mentioned. Then are different animals also, and especially your bio, created to create. Right. I think वो 3 words में आपने मेरा, I think you won my heart especially. I love to create. I feel कि creation is an art. Correct. कुछ भी create करना, छोटी से छोटी चीज create करना भी it's an art. 100%. आपके लिए creation का space, how do you get into that space of कि मेरे को कुछ नया create करना है तो? I think ये मैंने created to create was when I actually started doing well in DJing. You know, is when I changed it to create because उससे पहले I wanted to create something, चाहे वो you know acting related हो या चाहे वो music related हो, you know, पर I didn't know कि मैं किस रास्ते जाऊँ. And then suddenly when you know you get a direction and then you start understanding कि यार नहीं मुझे यार ये चीज़ कर, एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस करना होता है, you know, अगर आपको कुछ क्रिएट करना होता है. I had to leave television completely to get into music completely. I had to listen to a lot of world cinema, world music, you know. वहाँ से मुझे ideas आने लगे, फिर I started, you know, making things and then things started multiplying, you know. And now again I'm creating more things because I think जब आप किसी भी एक फील्ड में पूरा डेप्थ तक आप घुस जाते हो ना, और अगर आपने उस चीज़ में अच्छा किया हो ना, तो सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है. देन आप दूसरी चीज़ पकड़ो, देन आप तीसरी चीज़ पकड़ो, you know. And I think अब मैं अपने फेज में हूँ जो मैं सब करना चाहता हूँ. Which is a very nice phase. Now you can do those things क्योंकि I think थोड़ा या थोड़े से तो बहुत ज़्यादा बट उसके लिए ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है. जैसे मेरे पेन ड्राइव में 12,000 गाने हो गए, है ना, तो मैंने 12,000 गाने पता नहीं कितनी बार सुने हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी एंड इंटरनेशनल म्यूजिक, ठीक है. पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोरियन सिनेमा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यू नो टर्किश सिनेमा देख रहा हूँ, है ना. और मुझे पता है कि मुझ में इमोशंस और कितनी ज़्यादा चेंजेस आ रही है. तो आई फील कि यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग अ लॉट in different genres of things that you want to be able to create something original. Then you don't कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब चीज़ नहीं हो सकती है. You know, एक टाइम पे आपको उतने घंटे देने हैं. जैसे अभी मैं म्यूजिक में आई एम स्टार्टिंग another alter ego of mine, you know, which is gonna be a lot of sound of every nation. Okay, which is gonna be a complete different genre of music, you know, in Afro house, Arabic house, Turkish house, which will have Indian music, you know, which nobody has listened to till date. But July onwards, that's gonna come in like full fledged. मेरे उसमें 25 गाने ready हो चुके. तो I'm hoping a lot कि I try to give a touch of sound of every nation in this different brand name of mine. So let's see. That's a very exciting news to know about. इसके लिए मुझे 1000 घंटे इस जॉनर के म्यूजिक को सुनना था, आर्टिस्ट को समझना था, अपने ईयर्स को पावरफुल करने थे कि मैं 10 सेकंड में समझ जाऊँ कि ये क्या है. You know, so I think you have to really learn to be able to create something. Otherwise, if you don't learn, you can't create something. It will be very basic. Right. And talking about good vibes, as we mentioned in the beginning, good vibes कुछ लोगों से भी आती है. जी. तो who are those people in your life जिनके साथ हमेशा good vibes आती है? My wife, my parents, my wife's sister, her parents, my 15 pets, my manager, my music team, और my few directors who I connect with a lot. तो I think मुझे इनके साथ ही सबसे ज़्यादा गुड वाइब्स आती है. मुझे दोस्तों के साथ भी आती है, पर एक्चुअली क्या हो गया ना कि बहुत मेरे दोस्त थे शादी के बाद मुझे मैसेज करते बोलते भाई तू बदल गया. तो हाँ बदल गया.
You've changed. हाँ भाई change हो गया, priorities बदल गई तो बदल गया. And talking about the right people, we have a few pictures also. Oh wow. Okay. And we got a sneak peek of those pictures, but we want to know like the story behind it. Of course. As you mentioned, the right people in your life. I think this picture Oh yes. justifies it the best. ये मेरे कॉन्सर्ट में हुआ था पिल्लई एलिग्रा का कॉन्सर्ट था नवी मुंबई में. देयर वाज अबाउट 8,000 पीपल और इट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज वे अनदीप वाज अटेंडिंग अ कॉन्सर्ट ऑफ माइन. Okay. अनदीप ने मेरे क्लब शोज अटेंड किए, कॉन्सर्ट्स नहीं अटेंड किए, तो ये मेरा पहला कॉन्सर्ट था साथ में. और आई जस्ट वांटेड टू गिव हर अ सरप्राइज. शी इज वेरी स्टेज शाय, यू नो. तो आई वाज लाइक कि नहीं, स्टेज पे अनाउंस कर दिया. अनूप जैन का गाना था हुस्न, जो मुझे बहुत पसंद है. एंड आई थिंक इट वाज द ऐप सॉन्ग. आई थिंक इट वाज द परफेक्ट सॉन्ग व्हिच आई वांटेड टू डेडिकेट टू हर इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल. एंड आई थिंक उसमें मैंने एक बड़ी अच्छी एक अनाउंसमेंट भी की थी इस गाने पे कि जो असली आशिकी होती है ना, वो शादी के बाद ही शुरू होनी चाहिए. हाँ. Wow. उससे पहले सारे दिल जले ही घूमते रहते हैं. ओए. वो समझना जरूरी है हाँ, कि आप wow. दिल जले हो या आशिक हो. आशिक हो. है ना. बेवफा 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 निकली हो तो मुझे ये नहीं करना है. हाँ. मुझे आशिकी करनी है. Wow. मुझे दिल जले नहीं बनना है. Very nice, and I can imagine the song playing in background. So I think it enhances the Yes. picture more. The Yes, yes, yes. memory is just so beautiful. Yes. Right. And talking about people who we get good vibes from, so we found out, you know, that you work with Beanie Vici. Right, right. How was that experience? तो होली हुई थी. हाँ. आई थिंक 2020 में शायद. हाँ. आई थिंक आफ्टर कोविड मे बी. Right, 2020. हुई थी. और तब आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म शेयर स्टेज विद विनीत. आई थिंक महालक्ष्मी स्कूल्स में हुआ था, है ना. एंड दैट वाज अ सनबर्न शो एंड 20,000 पीपल. Wow. ओके. और हुआ ये था कि सनबर्न और टीम इनोवेशन परसेप्ट इनका एक इवेंट हो रहा था. दे आर लाइक द बेस्ट कंपनीज टू डू इवेंट्स विद एंड शोज. सो उनके साथ मैं ऑलरेडी होली कर रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली दैट होली गॉट कैंसल्ड. देन आई वाज लाइक वेरी अपसेट, यू नो, कि यार क्या होगा. देन वन ऑफ द members from the Percept team and team innovation team, you know, he called me and he's like, bro, you know, we want you in the lineup tomorrow. Beanie Vici, you are closing it. Wow. I was like, wow. All right, I am double happy. Thank you so much, you know. So, you know, they gave that much of respect to me and, you know, I appreciate that. It was one of my best shows and puri raat I was sitting and preparing a mad set so that I could kill it. And I got great responses and then the career just took off. Wow. So, yeah. And I think you work with Diljit Paji also. Yes, I had the opportunity to open him in one of the shows as well. That was in BKC, Bandra Kurla Complex, and that show, oh my God, मैंने you know, I've shared stage with Guru Randhawa. I think हमने 18 shows किए थे एक साथ 2018 में. You know, that was massive. उसके बाद दिलजीत पाजी के साथ when I opened him, मैंने ना आज तक इतनी फैन फॉलोइंग किसी इंडियन आर्टिस्ट के लिए नहीं देखी है, to be very honest. And especially Punjabi artists, I have not seen so many people. You know, there are people from the army who are coming in buses, multiple buses, and I'm like, wow, like, and इतना मजा आया कि मतलब it was so much of happiness I've never seen in an Indian concert, you know, ever. But with Diljit Paji's concert, wow, it was fun. Like, I think the audience loves him. Everybody loves him. Everybody loves he's him. such a nice, soul-hearted, you know, amazing person, and with such amazing, good vibes in his aura, in his thoughts, in the way he speaks. Right. So there's so much to learn from him. Wow, lovely story. So as we mentioned, good vibes कुछ जगहों से भी आती हैं. बिल्कुल. तो कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ से आपको good vibes आती है? मेरे घर से. अरे मेरे घर में जो मेरी बालकनी है उसका व्यू है पहाड़ों का. Oh, wow. And I just love that. Powai side? Goregaon East. Goregaon, wow. You know, so I can see the entire national park वाला जो flyover mountains है पीछे. Right. So and it's like the skyline. Wow. So it's like a what a view to wake up to. Or anything which is beach, anything which is nature, mountains. You know, I enjoy that a lot. Right. Waterfall, deep forest. You know, मुझे sanctuaries बहुत पसंद है. Animal sanctuaries में मुझे बहुत peace मिलता है. Right. We know that, you know, you've done a lot of international performances.
What would you say is your favorite country to perform at? Dubai. 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 Wow. I love performing in Dubai. Habibi, come to Dubai. Oh yes, अभी भी come to Dubai. तो दुबई मैं बहुत रेगुलरली जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं. आई लव द सिटी. ऐसा लगता है मैं इंडिया में ही हूँ. Yeah. You know, a better Mumbai, Yeah. better constructed Mumbai. You know. What Mumbai aspires to be? I really want Mumbai to be beautiful, yeah. Like my wife, she's from Lucknow, Achha. but she's worked 10 years of her life in Hyderabad. Oh, wow. You know, and I love Hyderabad too. तो वहाँ के roads, सारी चीज़ें, तो जब वो यहाँ आते होते यार यहाँ पे सब खुदा हुआ है यार, क्या हो रहा है वगैरह. Yeah. तो आई रियली होप कि मुंबई में एक साल कभी कुछ ना खुदा हो. एक साल बस. Potholes are a big pain. Mumbai में. I'm proper Mumbai Bandra boy, you know, it hurts, pinches. Yeah, so I'm like a Delhi boy, so I came from Delhi. तो है ना. A lot वहाँ of- का तो खाना, ओह, oh, you know, Mumbai can't beat Delhi food for sure. मुझे खाने का बहुत शौक है. हाँ. मैं जाता हूँ जब कहीं भी जाता हूँ, मुझे वहाँ की स्पेशलिटी पता है और मुझे वहाँ पसंद है खाना. You तो know. दिल्ली में क्या क्या खाने को पसंद आया? यार करीम्स मुझे बहुत ओए, पसंद है ना. मुझे करीम्स का butter chicken try बटर चिकन, उफ, बहुत Best. सारी चीज़ें तो मुझे वहाँ पे तो हर जगह उसका हर मटन निहारी भी बहुत हाँ, बहुत क्रेजी है उसका. अच्छा है, अच्छा बहुत है. अच्छा है. पर यो मतलब सब कुछ सारे खानों में स्वाद है यार वहाँ हाँ. पे. मुंह में पानी आ रहा है तुम्हारे. I understand. I feel your pain when you're in Bombay because food here is not that great compared to Delhi. राइट एंड सो वहाँ पे चाट इज वेरी नाइस. जी, तो बिल्कुल. मैं लोगों को अगर बोलता हूँ कि गोलगप्पे अलग ही चीज़ है तो दे डोंट अग्री विद मी कि नहीं पानी पूरी गोलगप्पे एक ही चीज़ है. नहीं अलग चीज़ है. हाँ. वो द पूरी ओनली इज वेरी डिफरेंट. पानी पूरी is the गरीब version of गोलगप्पे. Unfortunately, I guess so. You know. But उसमें ऐसे लगता है पता है खत्म ये लगा के कुछ गया अंदर. So हाँ. अभी व्हाट डू यू थिंक इंडिया में पार्टी सीन बेस्ट किधर है? दिल्ली, हैदराबाद, गोवा में अभी थोड़ा कम है इलेक्शन की वजह से, but then it's gonna get better now the election is over. कोलकाता हैदराबाद में नाइट लाइफ है? नेक्स्ट लेवल. आई एम टेलिंग यू, लास्ट 2 साल से मैं न्यू ईयर्स पर वहीं परफॉर्म कर रहा हूँ. Oh, wow. लास्ट ईयर इट वाज न्यूक्लियर एंड वी परफॉर्म Oh, wow. and it had 9,000 people. So it was an insane show. We had 2 different stages. One stage for him. He had 4,000, 5,000 people. I had 4,000, 5,000 people. So it was a massive show. And what I like about Hyderabad, honestly, कि 1 बजे सब बंद हो जाता है. अच्छा. 1 o'clock everything shuts. So people are there early. Yeah. 10 बजे तक आ जाते हैं. अच्छा. 10:30 तक जगह पैक हो जाती है. और उसके बाद 1 बजे सब कुछ बंद हो जाता है. You know, Right. which is fantastic. और कौन से क्लब्स हैं हैदराबाद में अच्छे अभी? Prism. So Prism. Prism is India's probably #1 club. Oh. It is world's I think 25th best club. ओह वाओ. जहाँ पर आई थिंक सारे ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने परफॉर्म किए होंगे, सारे ही इंडियन आर्टिस्ट ने परफॉर्म किए होंगे और मैंने भी वहाँ पर बहुत परफॉर्म किया है. सो आई थिंक प्रिज्म इज श्योरली इंडियाज #1 क्लब. एंड दिल्ली में यू मेंशन, तो दिल्ली में क्या बेस्ट प्लेस टू पार्टी यार? यार दिल्ली में बहुत जगह है. दिल्ली में प्लेबॉय आई एम परफॉर्मिंग देयर अभी. दैट्स अनदर वेरी गुड Yeah. प्लेस. देयर इज सोहो, वाइट, मंकी Yeah. हाउस, यू नो, प्रीवे, बहुत सारी जगह है which are fantastic in Delhi. So we have another memory of yours that we want to know more about. बहुत ही एक हैप्पी मोमेंट है. One of my favorite pictures. ये मैं गोवा में एक्चुअली तो क्या होता है ना, दिसंबर 31st मेरा जैसे हो जाता है. हाँ. 1st Jan I am relaxed, okay, Yeah. and immediately I need to go and rest out with my team. Unwind. Unwind completely. It's a Yeah. must for me कि मुझे 6-7 दिन 8 दिन मुझे ना कोई फ़ोन नहीं उठाने. मुझे अपने में रहना है. मैंने बहुत काम कर लिया, मैं exhausted हो चुका हूँ. I want to just be by myself with my own limited people. That's it. Do fun stuff, you know, Yeah. play volleyball on the beach, play with the dogs on the beach, go swimming in the ocean. You know, I want to do all of that. Go boat riding. I want to, you know, do all those raw stuff. You know, Yeah. go jogging and वगैरह वगैरह. I don't want to party, nothing. तो ये तब की फोटो है. अब हम गुड वाइब्स की बात करते हैं. जी. तो गुड वाइब्स के लिए मूड भी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत. कि लोग हो गए, प्लेसेस हो गए, बट उसके बाद भी एक मूड सेट करना पड़ता है, एक माहौल बनाना पड़ता है जो कहते हैं. तो हाउ डू यू अप्रोच दिस? आप माहौल सेट करने के लिए मूड सेट कैसे करते हो? यार मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बी योर सेल्फ, है ना. और जब भी आप किसी से भी मिलते हो,
यू नो इट इज़ अंडरस्टैंड, मतलब जितना अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे तो आपका वाइब कभी सेट नहीं होगा, है ना। जितना आप एफर्टलेसली नॉर्मल तरीके से दो चार चीज़ों पे बातें कर रहे हो और लग रहा है कि नहीं, यू डोंट नीड टू बी गुड वाइब्स डजंट मीन यू नीड टू येस एवरीथिंग दैट द अदर पर्सन इज सेइंग। इफ यू क्वेश्चन एंड इफ यू से नो एंड देन द वाइब इज बीइंग सेट, दैट इज वेयर यू आर रीचिंग टुवर्ड्स द गोल कि हाँ दिस इज व्हाट गुड वाइब्स इज। So you mentioned that compromises is a part of life. Absolutely. So what do you think are some compromises that you might have to make as a DJ? यार बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हमारा कोई स्लीपिंग शेड्यूल नहीं होता है ना। हमें अगर कोई प्राइवेट या कोई वेडिंग्स में परफॉर्म करना होता है तो कभी कभी रात के 3 बजे कॉल आता है कि चलो 1 घंटे में रेडी हो जाओ, 4 बजे आपका सेट है, यू नो। तो दैट इज़ टॉर्चरिंग। ओके, आई हेट टू ट्रैवल ब्रो। I used to love traveling. I hate to travel because I think मैंने ये साल में तो मैंने शोज कम किए हैं क्योंकि मैं बहुत क्रिएशन पे फोकस कर रहा हूँ। पर इससे पहले मैं साल के आई डोंट नो मैं 200 फ्लाइट लेता था एवरेज। 200 फ्लाइट्स इन द लास्ट 6 years पर ईयर। मतलब मैंने 600-800 फ्लाइट्स पर मैंने ट्रैवल किया। तो इमेजिन कि मतलब मेरे से अच्छा ट्रैवल फ्रेंडली इंसान कोई है ही नहीं। मतलब मेरी वाइफ बोलती है कि मैं कहीं भी कैसे भी जाके मैं कहीं भी कुछ भी फ्लाइट रुका कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, सारे एयरपोर्ट्स में सारे जुगाड़ है, सारी चीज़ें हैं। तो एंड आई हेट ट्रैवल, ओके, बट माई जॉब wants me to travel, okay, and expects me to travel, you know, so I'm very grateful कि I'm getting I have all the work, everything, but it's very tiring, it's very exhausting. Does it feel like you're dragging yourself to work at times? 100%. मैं एक भुवनेश्वर में परफॉर्म कर रहा था, where I was sharing stage with बादशाह, इक्का, नीति मोहन, है ना। तो we all were there और उसमें पीछे ना वो CO2 गन होता है ना। तो स्टेज पे था, सामने 4-5 हज़ार लोग होंगे। तो वो CO2 गन से मैं ऐसे घूमा, ठीक है। तो पीछे जो मेरा कैमरामैन था, अरे सर बढ़िया शॉट है, आप ऐसे लेके करो ना। हाँ ठीक है। और रमज़ान का टाइम था, आई वाज फास्टिंग, तो माई बॉडी वाज वेरी ड्राई। तो पीछे से CO2 गन ली और ऐसे घुमाया। तो उस वक्त समझ में नहीं है, बड़े करक करके आवाज़ आई। लग गया। अब मेरे पास 2 गाने हैं, अब मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ठीक है, पर वार्म है तो आई कुड नॉट फील इट। व्हेन आई गॉट डाउन उसके 20 मिनट बाद लिटरली मेरी बॉडी 6:10 में थी। मैं ऐसे 6:10 पे बैठा हुआ था, ऐसे टेढ़ा चल भी रहा हूँ, ऐसे मिल रहा लोगों को टेढ़ा, है ना। 6:10। अब मैं कैसे उसको ठीक करूँ। फिर रूम में जाके वहाँ पे लॉबी में लोग रुके हैं कि मीट एंड ग्रीट होगा, है ना, ये होगा वो होगा, सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। उनको लगा होगा अरे अली में इतना एटीट्यूड है, मिल नहीं रहा है, फोटोज नहीं ले रहा है। इट इज़ वेरी टैक्सिंग, हेक्टिक, मेंटली इज़ वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज 9 लाख DJs है इंडिया में। 9 lakhs इज अ ह्यूज नंबर। बहुत लोग अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि यार डीजेइंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, यू नो। देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर क्रिएटिंग द राइट साउंड, द राइट मिक्सेस, यू नो, यू आर डूइंग इट एवरीथिंग राइट, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह। तो गुड वाइब्स की अगर बात करें तो कमिंग टू आवर लास्ट सेगमेंट, फाइंडिंग दैट राइट थिंग्स टू डू। अब कुछ एक्टिविटीज होती हैं या किसी के लिए मे बी ड्राइविंग दे लाइक कि गेड़ियाँ मारना अच्छा लगता है, किसी के लिए दे लाइक कि यार मे बी गोइंग एंड ईटिंग समथिंग इज लाइक एन एक्टिविटी दे एंजॉय। तो कोई ऐसी थिंग टू डू जो कोई एक्टिविटी जिससे आपको गुड वाइब्स आती है? बहुत सारी यार। मुझे अपने डॉग्स को बीच पर वॉक ले जाना बहुत पसंद है। तो बेसिकली अभी जो मेरे 2 डॉग्स आए हैं वो हैदराबाद में थे। अच्छा। दे वर ना बोर्डिंग, ओके, बिकॉज अनली व्हेन वी गॉट मैरिड इन नवंबर, और फिर वी हैड टू गेट देम, बट इमीडिएटली नहीं होना था, 6 महीने बाद, बिकॉज मेरे घर पे नहीं अलाउड थे फैमिली वगैरह वगैरह, यू नो। सो देन देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉर्चर वी हैड टू गो थ्रू। तो वहाँ से हम उनको ले आए ट्रेन में, इंडियन रेलवे में, और बहुत इश्यूज़ के बाद व्हेन वी गॉट देम, एंड देन इमेजिन द 2 dogs, they've never seen a beach in their life. So I took them to Juhu Beach last week, and they went mad. They went crazy, and it was so nice. So to see that, so I think that gives me a lot of happiness. That is like great good vibes for me. So a lot of our followers, they told us that we got questioned that we're budding DJs. We want to become a DJ. So what should be the first few steps that they should take? पहले तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चलो, फर्स्ट स्टेप इज कि यू नीड टू गो हैव अ गुड टीचर,
okay, who can teach you how to play in DJing. You need to learn on a professional, proper Pioneer, CDJ Nexus 2, Nexus, all the Pioneers, which are the best systems. You need to learn so that आप अगर होता है ना आप बड़ी गाड़ी पे सीखोगे तो छोटी आप आराम से चला लोगे, लेकिन आप छोटी पे सीखोगे बड़ी पे जाओगे तब आपको डर लगेगा वो मैं ठोक दूंगा तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आप सीखो, अच्छे से सीखो, बहुत अच्छे से सीखो, फिर आप रिसर्च करो कि यार म्यूज़िक कहाँ से आया है ना, उसकी हिस्ट्री जानो. अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो आप अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से करोगे तो आप आगे नहीं जाओगे. अगर आई रियली वांट कि यार जो इंडियन जितना फेम बाहर के डीजेस को है उतना इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार्स को नहीं है इन सिनेमा. उतना मतलब वो पर डे जितना वो लोग पैसे लेते हैं है ना इज़ अनरियल बिकॉज दे फोकस ऑन साउंड्स. Okay, they focus on innovations completely, and there is a lot of support internationally among international labels and artists for collaborations. तो it is important कि आप पहले DJing सीखो, फिर आप 2-3 साल 3 साल वो और म्यूज़िक प्रोडक्शन को सीखो. एक इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू नो कि यार आप किस स्केल में आप गाना बना रहे हो. प्रॉपर म्यूज़िक थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, पर थोड़ी भी जानोगे तो भी सही है. यू कैन स्टार्ट ऑफ वेल. So I feel कि you need to give it good amount of time, listen to one song with 10 different remixes and know कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है. And I think it should be a great 1 year, 1.5 year of extreme dedication, and then you're good to go, good to fly. Wow, that's amazing. All right, coming to just the last question. जी. What do you feel is that one thing that you're yet to do? Yet to do. I want to really get into doing good cinema. Okay. That is my dream ultimate. I've always been an actor from school to theatres to my entire journey has been around knowing, understanding cinema. जब मैं DJing भी कर रहा था और कर रहा हूँ शुरुआत के कुछ साल तक, जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं हर सिटी में 3-4 दिन बिताता था ताकि मैं वहाँ के कल्चर्स, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के ट्रेडिशंस को सीख सकूँ, समझ सकूँ, इन्फॉर्मेशन ले सकूँ. पता नहीं कब मुझे ऐसा किरदार, क्योंकि आप यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और मुझे लकीली आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग और मुझे एग्जैक्ट वैसी ही फिल्म मिली है जैसे मुझे करनी थी. इट वाज like the 12th fail vibes. I wanted to do that type of those types of roles only. I don't want to look cool. I might be the coolest DJ, with my whole facade that is created on stage. But deep down, as an actor, I know कि the simpler I am, the more I enjoy. Which I am a simple guy. तो मुझे भी वैसी चीज़ें, वैसा सिनेमा, वैसी चीज़ें करने का मौका मिला, सीरियस सिनेमा. So I will love it. So that's my ultimate dream. मजा आ रहा है बस आपके साथ बैठ के बातें करने में. Bro. Thanks. And like you mentioned, something new is coming up. Do you want to talk more about it? मूवी आ रही है तो नवाज भाई के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया है. Wow. शादाब खान ने डायरेक्ट की है. Wow. जिनकी भी ए पास ऑलरेडी है नेटफ्लिक्स पर, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, सीरीज है. सो आई एम प्लेइंग अ लीड इन दैट. आई एम प्लेइंग अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन दैट. सो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ मैं, बट इट्स अ वेरी ह्यूमन फिल्म. And it's based out of Muzaffarnagar, which is Nawaz Bhai's, where he's from. So I'm very excited. I wanted to always do such cinema, and I'm very happy that अब वो मौका है, अब लोग ज़्यादा accept कर रहे हैं, because it's more to our roots. It's what we are, Hopefully we see you in something like that. Inshallah. So I think with that we've come to the end of our conversation. Done. We had a great time. Thank you. Same Lovely here. talking to you, Ali. It was great to be on Things to Do, and it was great to be with you, talking to you. Lovely talking to you, man. And with that, we come to the end of the episode. If you enjoyed watching this show, make sure you like, share, and subscribe to Things to Do. If you could also tell our audience. Please don't forget to like, share, subscribe, and push the bell icon. Only on Things to Do. Amazing. So thank you, Ali. Thank you, audience. तो इसी के साथ लाइफ में गुड वाइब्स ढूंढते जाओ और गुड लाइफ पाते जाओ. टाटा. Pani Puri is the Garib version of Golgappa. Unfortunately, I guess so. Yeah. But उसमें ऐसे लगता है पता खत्म ये लगा के कुछ गया अंदर. So I don't want to be like I'm like a know-it-all DJ. I know everything. Though I know it all. Okay. I think इतना one-sided final. Oh यार कभी नहीं देखा यार. ये क्या हो रहा है यार? मजा नहीं आया. मजा नहीं आया. कि यार it was more exciting. मतलब कुछ तो बना. Elections में ज़्यादा मजा आया. इस पे नहीं मजा आया.
पर you know what I mean.